हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का फ्रीडम की 9th वीडियो में। तो बिना फालतू बात के शुरू करते हैं। वो एक बार इनके एक नेता एक गांव में गए और उन्होंने गांव में कहा कि गांव वालों आओ, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं। गांव वाले इकट्ठा हो गए। नेताजी ने गांव वालों से कहा, बताओ तुम्हारी दो समस्याएं बताओ, मैं दोनों समस्याओं का यहीं पे समाधान करूंगा। तो गांव वालों ने कहा, साहब हमारी पहली समस्या है कि हमारे यहाँ कोई हॉस्पिटल नहीं है। तो नेताजी ने मोबाइल निकाला, कहीं फोन मिलाया और मिला के फोन पे पता नहीं क्या कुछ कहा कि यहाँ गांव में हॉस्पिटल नहीं है, हॉस्पिटल तुरंत यहाँ हॉस्पिटल चाहिए। गांव वाले खुश हो गए कि 1 मिनट में यहाँ हॉस्पिटल आ रहा है। अगली समस्या के बारे में उन्होंने नेताजी ने गांव वालों से कहा कि मैंने आपकी पहली समस्या समाप्त कर दी, दूसरी समस्या बताओ। तो गांव वालों ने कहा, साहब इस गांव में कोई भी मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है। ये है इनके काम करने का तरीका, ये है झूठ बोलने का तरीका। इन्होंने वायदे किए बड़े बड़े, जो 10 साल के इनके वायदे हैं, मैं उनके बारे में बात करूं। जितना भी जोड़ लगा लो, आएंगे मोदी जी। जितना हिंदुस्तान के लिए काम कर दिया ना वर्ल्ड के अंदर, जो नाम बच रहा है वो मोदी जी की देन है। आतंकवाद की नोटबंदी करके आतंकवाद की कमर तोड़ी। Friedrich Nietzsche once said, "People do not want to hear truth because they cannot have their illusions destroyed." Illusion of being a Vishwaguru, having the world's most powerful passport. Modi ji stops wars. One such illusion is how demonetization destroyed black money. The reality is that useless decision destroyed India forever. If Modi ji really cared about black money, he would not have brought in anonymous electoral bonds. Nirav Modi, Mehul Choksey would have been in India. PM Care Fund should have been under the purview of CAG audits. Demonetization was about one thing and one thing alone: winning UP election. With this useless policy, BJP increased its seats in UP by 563%. But as a result, Indian rupee today has become a global joke. Nepal banned it. Bhutan struggles with it. No country accepts it. Which sane country would accept a currency from a nation that can ban its own currency overnight? A currency represents trust. We destroyed that trust in 2016. The saddest part is the justification given by idiots in the name of nationalism. The more we act as spokesperson for these useless political parties, the more we will suffer. I have to give you a warning before getting into my video because this story is extremely Indian. This man is Sungwinder Singh Sukhu and he is a senior Indian politician. A few days ago, he attended a government reception and was supposed to be served samosas. But when he arrived, the plate was empty and the samosas were gone. They opened an official investigation into this to determine who ate the samosas and why. And the conclusion to this investigation was that the samosas were accidentally served to the security staff instead of the minister, and the staff committed an anti-government act by eating these samosas. Mr. Sukhu later made a statement saying that this controversy was actually not about the samosas themselves, but was actually about the miscommunication between his staff members. And that's what pissed him off so much, and it's going to lead to some protocol changes going forward. I get it, man. You're not you when you're hungry. And since Snickers isn't that widespread in India, you went for a samosa and it wasn't there. मोबाइल ऑन करके जर्नलिस्ट मोबाइल ऑन करके सर, ये बहुत गलत बात है। बाबा रामदेव 6 करोड़ 92 लाख की गारंटी कराई है, दिखाएंगे सर? क्यों नहीं दिखाएंगे? कैसी बातें करते हैं? सब दिखाइए ना, केवल सैटेलाइट टीवी में केवल एड से दिखाने से थोड़ी चलेगा। हम 6 करोड़ 92 लाख की गारंटी बाबा रामदेव को, सर आप ये जानते मैं कौन हूँ मैम? लेकिन वो न्यूज में क्यों नहीं आप कौन है? वो न्यूज में आने दीजिए ना न्यूज में, अरे क्योंकि एड्स दिस इज चित्रा त्रिपाठी गोदी मीडिया 92 लाख 6। अरे आप लोग को यूट्यूब पर मैं लेकर आया हूँ, ये है आप, इतना ही आप। दिल्ली के अंदर की हवा जहर बन चुकी है, लेकिन एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने इस इलेक्शन में इसको की इशू नहीं बनाया है। लेकिन कांग्रेचुलेशन दोस्तों, अब इस इशू से हमारी इंटरनेशनल बेइज्जती होना शुरू हो चुकी है। एक डेनमार्क की बैडमिंटन प्लेयर ने ये कहा कि लगातार 2 साल से मैं दिल्ली आ रही हूँ और यहाँ की हवा में सांस लेते ही मेरी बीमारियाँ शुरू हो जाती हैं, और इसीलिए मैं इस बार का टूर्नामेंट बीच में छोड़कर वापस जा रही हूँ। अभी रिसेंटली मैं पढ़ रहा था कि ऑल्दो आजकल हॉलीवुड में आग लगी हुई है, जंगल जल रहे हैं, घर जल गए, लेकिन फिर भी उनकी हवा का AQI दिल्ली से कई गुना ज़्यादा अच्छा था। एक अरविंद केजरीवाल ने पहले कहते थे हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, आप पोल्यूशन पे बात करो तो कहते हैं भैया इस पे तो हम कुछ नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ PM मोदी भी बातें बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन एक भी सोल्यूशन पिछले 10 साल में निकाल के नहीं ला पाए। अरे दिल्ली के अंदर पोल्यूशन अपने अंदर से तो पैदा होता ही है, बल्कि आसपास के स्टेट जैसे यूपी, पंजाब, हरियाणा, यहाँ से भी उड़ के जाता है। तो इन स्टेट के साथ मिलके एक बैठक कर लेनी चाहिए। लेकिन इन सारे स्टेट के भी चीफ मिनिस्टर्स को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि दिल्ली में लोगों का दम घुटता चला जाए। 2100-2500 रुपए दे के आपका वोट खरीद लेंगे और 5 साल मस्त ऐश काटेंगे।
और जो लोग भारत के नाम का दम्भ भरते हैं कि इंडिया का नाम हमेशा ऊपर होना चाहिए, वो भी इस इंटरनेशनल बेइज्जती के बावजूद इस पर कुछ बोलते हुए आपको नहीं दिखेंगे। कोई संगठन, ना कोई सरकार और ना कोई सेना और ना कोई बाबा, हम जैसे पाखंडियों पर भरोसा मत करना। हम तो जब तक मलाई मिल रही है मलाई ले रहे हैं, फिर छोड़ कर भागेंगे भैया कहीं विदेशों में। ज्यादातर बड़े बाबाओं ने, सबने, नेताओं ने पहले ही अपना सेटलमेंट विदेशों में कर रखा है। जिस दिन लड़ाई होगी छोड़ के भागेंगे हिंदुस्तान, और सबसे पहले वो भागेंगे जो आज अपने आप को बड़ा हिंदूवादी घोषित किए हुए हैं। और ये